تجھے کیا لگتا ہے تیرے سٹیٹمنٹ سے سارے شیعہ سنی آپس میں تلواریں لے کر نکل پڑیں گے، ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں گے؟ تیری یہ پالیسی ناکام رہی، یہ RSS کا ایجنڈا ناکام رہا۔ سمجھو اس ایجنڈے کو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ لالی پاپ RSS والے لے کر آئے جو فرنٹ سے BJP بن کر تمہارے سروں پر مسلط ہیں۔ ہلو، نمشکار، میں آپ کے ساتھ سرویش کمار، TRTI TV پر آپ کا سواگت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو ایمن رضوی کا سترنگا سلام۔ اگر کوئی ہے تو پلیز آئیں، مجھے جوائن کریں۔ نہ تھا میں تو خدا تھا، نہ تھا میں تو خدا تھا، نہ ہوتا میں تو خدا ہوتا، نہ ہوتا میں تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شاید اس شعر کا مطلب آپ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب میں نہیں تھا یا انسان دنیا میں نہیں تھا تب بھی میرا رب العالمین تھا، نہ ہوتا میں یا میں دنیا میں نہیں ہوتا تب بھی وہ اسی طرح بنا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، یعنی میری کرتوتوں نے، میری غلطیوں نے، میرے گناہوں نے مجھے آج ڈبو دیا ہے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا، کم سے کم یہ گناہ تو نہ ہوتے۔ خیر، آج میں بات کر رہی ہوں، اگر میرا آپ نے کیپشن دیکھا ہو، آج میں بات کرنے آئی ہوں وسیم رضوی پر۔ وسیم رضوی ایک ایسا نام جو کسی پہچان کا محتاج نہیں ہے، ٹیرر مچانے میں، اسلام کو گالی دینے میں، عورتوں کی بے عزتی کرنے میں۔ اور یہ میرا لائف کا تیسرا لائیو کہہ لیجئے یا 2 انٹرویو کہہ لیجئے، میں اس پہ آلریڈی بنا چکی ہوں۔ پہلے اس نے اپنا آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو، این آر سی میں جو عورتیں بیٹھی تھی گھنٹہ گھر پہ لکھنؤ پر، ان کو بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کر کے ان کو بازارو بتایا تھا تاکہ یہ لائم لائٹ میں آ جائے۔ یہ دکھنا بند ہو گئے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ BJP کے جتنے نیتا ہوتے ہیں وہ اپنا آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے خرافاتی ڈائیلاگ بولتے ہیں، الٹی سیدھے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سیکنڈ جو حرکت کری، اس حرکت پہ تو اس کا قتل واجب تھا، اس پہ فتویٰ نکلنا چاہیے تھا، اور اگر مجھے بھی موقع مل جاتا تو میں بھی شاید اس کو قتل کر دیتی اپنے اسلام کے اوپر۔ اس نے حضرت عائشہ کے اوپر نیوڈ فلم بنائی، پورا اس پہ اسلام کو اس نے ٹارگیٹ کرا، اسلام کو غلط بتایا، لیکن وہ فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا، وہ فلم شاید ریلیز نہیں ہو پائی۔ تیسری حرکت اس نے ابھی کری ہے کہ 2 دن پہلے اس نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالی ہے جہاں پر اس نے کہا ہے کہ کلام پاک میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، جن کو ہٹا دینا چاہیے۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ وسیم رضوی تو مسلمان ہے۔ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نام ماتر کا مسلمان ہے، اور دوسرا یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ کمیونٹی سے آتا ہے، اور وہاں پر اس طرح کی خرافاتیں کرنا عام بات ہے، شاید میرے نظر میں عام بات ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں، جب سے اس نے یہ والی بات کہی ہے تو تمام بڑے بڑے شیعہ رہنما آ کر بیان دے رہے ہیں کہ وسیم رضوی نے جو کہا وہ غلط کہا، ہم وسیم رضوی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے وسیم رضوی نے ایسا کیوں کرا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنگال میں چناؤ ہیں، ایک نفرت بانٹنے کے لیے BJP تو پریشان رہتی ہے کس طرح بھارت میں ڈیوائیڈیشن کرا جائے، ہندو مسلم کرا جائے، تو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے، شیعہ سنیوں کو بھڑوانے کے لیے وسیم رضوی کو ہیوی پیکیج دیا گیا کہ تو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے، تو پٹیشن ڈال، تاکہ تمام سنی اہل سنت تیرے اوپر یلغار مچا دیں، اور شیعہ سنی جو اتنی مشکلوں سے اس بار لاک ڈاؤن کے بعد، NRC کے بعد ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں، وہ پھر جدا جدا ہو جائیں۔ اس وجہ سے وسیم رضوی جو ایمان فروش ہے، جو مسلح ایمان بھی نہیں ہے، صرف نام ماتر ایماندار لگتا ہوگا کہ بھائی وسیم ہے شاید مسلمان ہو، شاید رضوی ہے تو شیعہ ہو، نہیں، نہ وہ مسلمان ہے، نہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اس کو شیعہ کمیونٹی بھی شیعہ مانے۔
अब शिया कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि उसका बाइकॉट करें, उस पर फतवा निकालें। जैसे आपको याद होगा, एक बार आयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी पर फतवा दिया था और इनाम घोषित करा था कि जो सलमान रुश्दी नाम के आदमी को जिंदा या मुर्दा या उसकी गर्दन कलम करके लाके देगा तो उसको इतने इतने करोड़ मिलेंगे। और ये फतवा कहाँ से निकला था? ये ईरान से निकला था। और एक बार फिर ये सलमान रुश्दी का बाप पैदा हो गया है, तो इस पे भी इसी तरह के फतवे और इनाम निकलने चाहिए ताकि लोग इसका सर धड़ पैर सब काट कूट के लेकर जाएं। इस्लाम मज़हब का मजाक उड़ाना सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, इस्लाम मज़हब को गाली देना सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। शायद मेरे भाई और बहनों आपको नहीं पता हो कि इस वक्त राज्यसभा की लॉलीपॉप वसीम रिजवी को बीजेपी ने पकड़ा दी है ताकि ये राज्यसभा का इसको लालच दे दिया कि तू मुसलमानों के खिलाफ, तू अहले सुन्नत के खिलाफ भौंकता रहे और हम तुझे राज्यसभा में पहुंचा देंगे। सेम यही लॉलीपॉप कांग्रेस ने मीरास भांड इमरान प्रतापगढ़ी को पकड़ा रखी है। वो भी इसी तरह की खुराफात करता रहता है और मुसलमानों को बदनाम करता रहता है, गालियां देता रहता है। सेम यही यहाँ पर बीजेपी में चल रहा है। ये एक डिवाइडेशन है। ये गेम आपको समझना होगा कि वसीम रिजवी किसका इम्प्लांट बंदा है। ये आरएसएस की एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि बंगाल में भी इलेक्शन है और बंगाल में ऑलरेडी खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर गली मोहल्ले में एटम बॉम्ब की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, लोकल बॉम्ब की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और अल कायदा पूरा का पूरा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। कहाँ पर हो चुका है? यानी बंगाल में जो मुसलमान हैं उनको गाली दी जा रही हैं। और इसी का एक कड़ी है कि ये वसीम रिजवी से फौरन आरएसएस और बीजेपी ने पिटीशन डलवा दी कि कलाम पाक में 26 आयतें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हाँ आतंक मचाओ और एग्रेशन मचाती हैं। अगर बात कलाम पाक पर आएगी तो हर अहले सुन्नत का खून खौलना चाहिए, क्योंकि कलाम पाक हमारा एक लेसन है, हमारी एक टीच है, हमारा ज़िंदगी गुजारने का एक मजमुआ है कि हम दुनिया में आए हैं तो किस तरह ज़िंदगी गुजारें। कलाम पाक में एक सूरत ऐसी नहीं मिलती जो दंगे को बढ़ावा दे, जो नफ़रत को बढ़ावा दे। अरे कलाम पाक में तो सबसे पहले हिब्बुल वतनी भी आई है कि अगर आप किसी काफिर के मुल्क में रहते हैं, आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ इस्लामिक हुकूमत नहीं है, वहां भी हिब्बुल वतनी मस्ट है कि आप हिब्बुल वतन बने, आप उस वतन से मोहब्बत करें। कलाम पाक में किसी मजहब की तौहीन नहीं आई। ये कहा गया है कि सब मजहब का एहतराम करें। और तो और मेरा कलाम पाक इस बात की भी टीच देता है कि अगर मेरे माँ बाप हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो अहले ईमान नहीं हैं, तो उनका रुतबा उतना ही होना चाहिए जितना इस्लाम ने दिया है और जितना अहले मुस्लिम का है। तो जो कलाम पाक इतनी खोल खोल के वजाहतें करता है और ज़िंदगी गुजारने के नायाब तरीक़े बताता है, मैं कैसे मान लूँ कि वो कलाम पाक 26 आयतें ऐसी लेकर लिखी हुई हैं जो आतंकवाद को, टेररिज्म को बढ़ावा देती हों। नहीं है, ये एक चाल है, ये एक डिवाइडेशन है, ये भारत में नफरत फैलाने का एक और चाबुक है, एक और ताबूत है, जहां मुसलमानों को, शियाओं को लड़वाकर फिर मार काट करने की साजिश है। इस साजिश को आपको समझना होगा और वसीम रिजवी का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। वसीम रिजवी से कहना होगा, तू होता कौन है? तू होता कौन है? यानी तू कलाम पाक को मानता ही नहीं। नाम बदलने से, नाम रखने से कोई वसीम रिजवी नहीं बन जाता, कोई मुसलमान नहीं बन जाता। ये तो मुसलमान है ही नहीं। आप देखिए बीजेपी में ज़्यादातर लोग अहले शिया हैं, सारे शिया हैं, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, जितने इनके घरों में दामाद हैं 99.9 सारे के सारे शिया हैं। या वो अगर आपको याद हो शाहीन बाग का शहजाद अली, तबस्सुम हुसैन, ये सारे के सारे शिया थे जो बीजेपी में जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों जाते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों जाते हैं। इनके मजहब में कमजोरी होती है, इनके अकीदे में कमजोरी होती है, या ये पैसे में बिक जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये जाते हैं ठीक।
یہ ڈیموکریسی کنٹری ہے, آپ کا حق ہے آپ کسی بھی پارٹی میں جائیں, لیکن اس پارٹی میں جا کر آپ اہل سنت کو گالی دیتے ہیں, آپ ہمارے رسول پاک, ہمارے میسنجر آف اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ ہمارے کلام پاک کو برا کہتے ہیں, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن ہم خون خرابہ نہیں کریں گے, ہم سمجھائیں گے آپ کو بیٹھ کر کہ آپ جو بکواسیں کر رہے ہیں ستا کے لالچ میں, ودھان سبھا میں آنے کے لیے, راجیہ سبھا میں آنے کے لیے, پالیٹکس میں آنے کے لیے چند ٹکڑے جو آپ کے سامنے ڈالے جا رہے ہیں, آپ بند کر دیجئے یہ پالیٹکس. اسلام تمہارے باپ کی پپوتی نہیں ہے, تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تم چند ٹکڑے پکڑ کر آؤ گے اور ہمارے اسلام کو, ہماری کتاب کو, ہمارے کلام پاک کو, ہمارے میسنجرز کو تم گالیاں دینی شروع کر دو گے اور ہم سن لیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ تم لوگ کون ہو, ہمیں نہیں پتا کہ تمہارا ایجنڈا کیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ تم صرف مسلمان نام لگا کر ہمارے اسلام کو گالیاں دے رہے ہو. ارے آیت اللہ خمینی بھی شیعہ تھے, ایران کے اتنے بڑے رہنما تھے, شیعوں کے سب سے بڑے رہنما مانے جاتے ہیں. آیت اللہ خمینی ہی تھے وہ جنہوں نے سلمان رشدی کی گردن لانے پر کروڑوں کا انعام رکھا تھا. کب رکھا تھا؟ جب اس نے توہین رسالت کری تھی, ایک کتاب بنائی تھی جس کا نام رکھا تھا شیطانی آیت, اس کا اردو میں ٹرانسلیشن تھا شیطانی آیت. تو جب انہوں نے خمینی صاحب نے, آیت اللہ خمینی صاحب نے اس پر فتویٰ نکالا تھا, انعام رکھا تھا, تو کیا وجہ ہے کہ آج کا جو یہ کافر ہے, آج کا جو سلمان رشدی کا باپ ہے, اس پر کوئی انعام کی بات کیوں نہیں کرتا, اس کے سر قلم کی بات کیوں نہیں کرتا؟ ہم کبھی کسی مذہب کو گالی دیتے ہیں, کبھی ہم نے شیعوں کو برا کہا, ہم نے شیعوں کے عقیدے کو برا کہا, کہنا چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں, ہم بھی کہہ سکتے ہیں جو تم ماتم کرتے ہو اور خود کو لہو لہان کرتے ہو, یہ بھی آتنکواد کو دعوت دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا؟ یہ بھی نفرت کو پھیلاتا ہے کہ تم زخمی کرتے ہو, خون نکالتے ہو. ہم بھی کہنا چاہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا, کیونکہ وہ بھی تمہارا آستھا کا معاملہ ہے. ہم بھی چاہیں تو ہم ہندوؤں کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 33 کروڑ بھگوان ہیں, اس کے باوجود تم روز ایک نیا بھگوان پیدا کر دیتے ہو. کبھی امیتابھ بچن بھگوان بن جاتا ہے, کبھی متھن چکرورتی امیتابھ بھگوان بن جاتا ہے, کبھی مودی جی تمہارے بھگوان بن جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے روزانہ تمہارے بھگوان پیدا ہوتے ہیں 33 کروڑ کے علاوہ. کیا ہم نے کہا؟ نہیں کہا, کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے مذہب کو انگلی اٹھائیں یا اس کو برا بھلا کہیں. تو وسیم رضوی کی اس حرکت کو فراموش نہیں کرا جائے گا. پہلی حرکت اس نے وہاں پر کری تھی جب اس نے گھنٹہ گھر کی عورتوں کو جو بیٹھی تھی وہاں پر NRC لے کے, ان کو بازارو کہا تھا چند ٹکڑوں کے لیے, کیونکہ بی جے پی نے اس کتے کے آگے چند ٹکڑے ڈال دیے تھے. اس کے بعد اس نے پھر حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کری تھی اور ایک فلم بنائی تھی. اور تیسری بار اس نے اس خنجیر کی ناجائز اولاد نے ہمارے کلام پاک پر مقدمہ ٹھوکا ہے کہ اس میں جو آیتیں ہیں نکالی جائیں. تو ہوتا کون ہے؟ تو ہے کون؟ پہلے تو اپنی آئیڈینٹی بتا. تو کون سے مذہب کا ٹھیکیدار ہے؟ تو سنیوں کے مذہب کا ٹھیکیدار ہے, تو شیعوں کے مذہب کا ٹھیکیدار ہے, تو بھارت کا ٹھیکیدار ہے, تو یہاں کے کانسٹیٹیوشن کا ٹھیکیدار ہے. تو ہے کون؟ چپڑ گنجو تو ہے کون؟ شرم تجھ کو مگر نہیں آتی؟ تو بھی کیفی اعظمی کی طرح بن جا کہ ہاں میں ناستک ہوں اور مجھے دفنایا نہ جائے, میری لاش کو جلایا جائے. تو بھی کیفی اعظمی کی طرح بن جا کہ کمیونسٹ ہوں میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. بتا, کیونکہ تو شیعہ بھی نہیں ہو سکتا, تو سنی تو ہے ہی نہیں, تو بھارتی بھی نہیں ہو سکتا, تو ایک اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اچھا انسان کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو, کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو, وہ عورت کی عزت کرتا ہے. ایون وہ ان عورتوں کی بھی عزت کرتا ہے جو ریڈ لائٹ ایریا میں رات کے اندھیرے میں مجبوری میں اپنا جسم بیچتی ہیں. ایک شریف انسان ان عورتوں کی بھی عزت کرتا ہے. تو نے کری تھی وسیم رضوی, تو نے تو گھنٹہ گھر کی عورتوں کو بازارو بتایا تھا کہ پیسہ لے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں تجھے ایک اچھا انسان تک ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو خنجیر کی بھی ناجائز اولاد ہے وسیم رضوی. ضرور تیری ماں کسی کوٹھے کی پیدائش ہوگی, ضرور تیرا باپ کسی غفا کی پیدائش ہوگا, اور ضرور تو کسی کیچڑ کی پیدائش ہوگا. تو نہیں ہے انسان وسیم رضوی, تو جانور سے بھی بدتر ہے, کیونکہ جانور بھی کسی جانور پہ حملہ نہیں کرتا.
सकता। जानवर अपनी कम्युनिटी पे हमला नहीं करता। कभी शेर को शेर का शिकार करते देखा, कभी कुत्ते को किसी कुत्ते का शिकार करते देखा, कभी बिल्ली को किसी बिल्ली का शिकार करते देखा, कभी किसी कौवे को कौवे का शिकार करते देखा? नहीं करते। ये अपनी कम्युनिटी में मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि ये इनकी अपनी कम्युनिटी होती है। तो तू कितना बड़ा खंजीर है, तू कितनी बड़ी नाजायज औलाद है। तू खुद बता रहा है कि तेरा एक बाप हो ही नहीं सकता। तू 101 बाप की खंजीर की नाजायज औलाद है। तू गुफाओं का पुत्र है। वसीम रिजवी नाम लिखने से तू अपने आप को जायज करार नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तू इंसान होता, सभ्य इंसान होता, खुद को भारतीय समझ रहा होता, यहाँ के संविधान को मान रहा होता या इस्लाम को मान रहा होता, तो तू आज जाकर ये गिरी हुई हरकत ना करता सिर्फ राज्यसभा में जाने के लिए कि तुझे किसी भी तरह राज्यसभा में सीट मिल जाए। तुझे क्या लगता है तेरे स्टेटमेंट से सारे शिया सुन्नी आपस में तलवारें लेकर निकल पड़ेंगे, एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे? तेरी ये पॉलिसी नाकाम रही, ये आरएसएस का एजेंडा नाकाम रहा। समझो इस एजेंडे को मेरे भाइयों और बहनों, ये लॉलीपॉप आरएसएस वाले लेकर आए जो फ्रंट से बीजेपी बनकर तुम्हारे सरों पर मुसल्लत हैं। ये नहीं जाने के मूड में है। इनको लग रहा है एक बार इनको सत्ता मिल गई तो ये सारी जिंदगी तुम्हारी छातियों पर मूंग लेंगे। इसलिए ये इन लोगों को, इन खंजीर की नाजायज औलादों को चंद टुकड़ों के लिए खरीद लेते हैं। और खरीदते किन लोगों को? जिनको ना अपना आता होता, ना बाप का पता होता, ना खानदान का पता होता, जो पता नहीं 101 बाप की नाजायज औलादें होती हैं या ये सारे के सारे कोठे की औलादें होती हैं। उसी में से एक है ये वसीम रिजवी। तू इंसान नहीं है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुझे इंसान भी नहीं मानती। तू जहन्नुमी इंसान है। और मैं तुझसे खुद कहती हूं कि तू खुद वसीयत कर इस बात की कि तेरी डेड बॉडी को नहीं दबाया जाए कब्र में, क्योंकि तेरी लाश से, तेरी सोच से, तेरी बॉडी के वायरस से, तेरे गंदे दिमाग से मैं नहीं चाहती कि जमीन भी अपवित्र हो, जमीन भी नापाक हो। तेरी डेड बॉडी को वाकई किसी इलेक्ट्रिक की पट्टे पे लिटाकर तुझे भस्म कर देना चाहिए, क्योंकि तेरी औकात वही है। जमीन भी तुझे नहीं समाएगी, इतने बुरे इंसान को जमीन भी नहीं समाएगी। तू डिक्लेयर कर कि हाँ तू इंसान नहीं है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आते हैं, चंद टुकड़ों के लिए खुद को बेच देते हैं और फिर ईमान को, मुसलमान को, कलाम पाक को, रसूल पाक को, खुलफाए राशिदीन को, सबको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। ये इनका शेवा है, क्योंकि ये टके टके पर बिक जाते हैं। आज सोशल मीडिया उठाकर देखिए कि भारत के बड़े बड़े शिया रहनुमा इसको बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि ये वसीम रिजवी उनकी रेपुटेशन नील कर रहा है, उनको गाली दे रहा है, उनके मजहब को गाली दे रहा है। जाहिर सी बात है ये शिया है। जब शिया इस तरह की हरकत करेंगे तो एक गैप आएगा, सुन्नी शियाओं में एक गैप आ जाएगा। और उसी की कड़ी ये आरएसएस लेकर आई है कि ताकि शिया अगर सुन्नियों को गाली देगा, कलाम पाक को गाली देगा, तो सुन्नी जो है शिया से दूर 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 बहुत दूर हो जाएंगे। ये उसी की कड़ी है। तो अब ये आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप तलवारें लेकर निकल पड़े, नहीं, कुछ मत करें, लेकिन आप ये भी मत करें कि इसको माफ कर दें, इसका सामाजिक बहिष्कार करें। ये खंजीर, ये वसीम रिजवी नाम का खंजीर, 101 बाप के खंजीर की नाजायज औलाद कहीं तो रहता होगा, रहता तो भारत में ही होगा, या तो दिल्ली में रहता होगा या यूपी में रहता होगा। कोई तो इसको जानता होगा। जहां मिले इसकी शक्ल पर ऑन द स्पॉट थूकिए, लात मारिए और इसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। सीना ठोक के मैं कह रही हूं, क्या करेंगे मेरा? ज्यादा मुझे पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। वो तो भारत में आम बात है कि यहां पर जो भी संविधान की बात करता है, जो भी हक की बात करता है, जो भी इंसानियत की बात करता है, उसका मुकद्दर ये सरकार जेल बना देती है। शायद आपको नहीं पता, स्वीडन एक मुल्क है, वहां के एक ऑर्गेनाइजेशन ने साफ लिखा है कि भारत में संविधान का कत्ल हो चुका है। जब से ये मोदी आया है, हिटलर, इसने 6 साल में पूरे संविधान को बदल डाला है, डेमोक्रेसी कुचल डाली है। सन 2014 से लेकर 21 तक कोई भी यहां पर डेमोक्रेसी वाली हरकतें नहीं हो रही, जबकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हुआ करता था सन 2001 में। ये मैं नहीं कह रही, स्वीडन में एक एनजीओ ने कहा है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, और पूरी दुनिया में इसकी हाहाकार हो रही है और सब भारत की तरफ देख रहे हैं। ये क्योंकि
कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं मोदी के साथ, कौन लोग हैं आरएसएस के साथ, कौन लोग हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमें बदनाम कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमारे मजहब को गालियां दे रहे हैं? वसीम रिजवी जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, अनुपम खेर जैसे लोग, स्मृति ईरानी जैसे लोग, ये लोग हैं जो भारत को मुसलसल बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसका डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, और हमारा पूरा भारत पूरी दुनिया में आज बदनाम हो रहा है। डेमोक्रेसी कुछ बची ही नहीं। जो भी मुंह में आता है भौंक देता है, और जो हक की बात करता है, संविधान की बात करता है, उस पर यूएपीए एनएसए लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है। आपको पता होगा सन 2001 में 140-50 मुसलमानों को उठाया गया था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहां पर अमेरिका में यहूदियों ने करवाया था, और उसके बाद पूरी दुनिया में धकड़ पकड़ किसकी करी थी? मुसलमानों की करी थी। तो भारत में भी 140 से ज्यादा मुसलमानों को जो हायर क्वालिफाइड थे, कोई कॉलेज के लेक्चरर थे, कोई प्रोफेसर थे, कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई चांसलर थे, किसी का अस्पताल था, कोई बिजनेसमैन था, उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया था। और 4 दिन पहले फैसला आया, 20 साल बाद फैसला आया कि उनको बाइज्जत बरी करा जाता है। ये होता है आपके साथ, क्योंकि आप खामोश रहते हैं, आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, आपको इससे मतलब ही नहीं कि सत्ता में कौन बैठा है, आपके बारे में क्या कह रहा है, आपकी कम्युनिटी के बारे में क्या कह रहा है, आपके मजहब के बारे में क्या कह रहा है, आपकी बेटियों के बारे में क्या कह रहा है, आपके बच्चों के बारे में क्या कह रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर किस तरह खराब कर रहा है। न जॉब दी जा रही, न पढ़ाई में आपकी कोई साझेदारी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखो, सन 2006 में आई थी। क्या कहा था सच्चर कमेटी ने? कि भारत का मुसलमान इस वक्त दलितों से भी बदतर है। आपने सोचा उस वाली बात पर? किसी मुसलमान ने गौर व फिक्र करा? किसी मुसलमान ने उस पर कुछ काम करने की कोशिश करी? क्या करा तुमने अपनी कम्युनिटी के लिए? सिर्फ बदनाम करा तुमने बिरयानी को। कोई तुमने एक चैनल बनाया, कोई तुमने न्यूज़पेपर बनाया, कोई तुमने अपनी एक मैगजीन बनाई, क्या बनाया? सिर्फ ये कहते नजर आते हो, हाय अल्लाह स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हाय अल्लाह न्यूज़पेपर हमें दिखाते नहीं है, हाय अल्लाह कोई मैगजीन हमारी नहीं है। कितने बिजनेसमैन हो मुसलमान, कितने बड़े बड़े भी बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर भी हैं जो अपना को मुसलमान कहते हैं। किसी ने कोशिश करी कि एक स्ट्रीम चैनल अपना बना लेते? एक चैनल बनाया मुसलमानों ने कोई अपना, कोई न्यूज़पेपर बनाया? गफलत तुम्हें खा गई। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि सिर्फ नमाजें पढ़े जाओ तुम्हें जन्नत दे देगा, सिर्फ रोजे रखे जाओ सिर्फ तुम्हें जन्नत दे देगा। माफ कीजिए, नमाजें एक कॉल है, अल्लाह की तरफ से एक कॉल है कि अल्लाह कहता है आओ मेरी तरफ आओ। अल्लाह तुम्हें आवाज देता है 5 बार और तुम वहां जाते हो। वो सिर्फ 5 बार तुम्हें आवाज देता है कि देखूं मेरा बंदा मेरे लिए कितना वफादार है कि मैं 5 बार बुलाता हूं, आया वो आता है या नहीं आता। रोजा क्या होता है? रोजा होता है कि अल्लाह ताला 1 महीना ऐसा रखता है साल में जहां तमाम उम्मते मुस्लिमीन एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, एक ही वक्त भूखी रहती है, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का मुसलमान हो। 1 महीना ऐसा आता है जहां उम्मते मुस्लिमीन एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और भूखा रहता है, क्योंकि मेरा खुदा कहता है कि इस वक्त से इस वक्त भूखा रहे। तुम क्या समझते हो? तुमने सोचा हमने नमाज पढ़ी हम मुसलमान हो गए, हमने रोजा रखा हम मुसलमान हो गए? रोजा भूख का एहसास कराने का नाम था। तुमने क्या करा? तुमने रोजे को छोटा करके अफ्तारियों को लंबा कर दिया। इतना सा रोजा रखते हो, किलोमीटर में अफ्तारियां लगाते हो। क्या करते हो? क्या तुम अड़ोस पड़ोस में देखते हो कि तुम्हारे कोई भूखा है? क्या तुम घर के बाहर देखते हो उस फकीर को जो खुद रोजेदार होता है? क्या करते हो तुम उसके साथ? जब तुम्हारी अफ्तारी तुम्हारे पेट में नहीं जा पाती और बच जाती है तो तुम जाकर वो भीख के तौर पे उसको देकर आ जाते हो और फिर कहते हो हम तो अल्लाह को खुश करते हैं, अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं। नहीं जरूरत अल्लाह को तुम्हारी नमाज की, नहीं जरूरत हमारे अल्लाह को तुम्हारे रोजों की। पहले अपने अमाल सही करो। अल्लाह ताला ने तो ज़कात भी रखी थी, क्या तुम सही से ज़कात देते हो? अगर ये मसला है कि अगर तमाम मुस्लिमीन सही से ज़कात देना शुरू कर दे तो दुनिया में एक भी बंदा परेशान नहीं होगा, एक भी बंदा भूखा नहीं होगा, एक भी बंदा बेघर नहीं होगा।
क्या तुम करते हो? क्या तुम देखते हो? तुमने क्या समझ के रखा है दुनिया को? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, भरे जा रहे हो टेंटवा अपना, भरे जा रहे हो सामान। तो जब इस तरह की हरकतें तुम्हारी होंगी तो फिर वसीम रिजवी जैसे कुत्ते आते रहे हैं, कुत्ते आते रहेंगे और कुत्ते आएंगे, क्योंकि वसीम रिजवी को बनाने वाले तुम हो, तुम्हारी हरकतें हैं। तुम अगर यूनाइटेड हो जाओ तो किसी वसीम रिजवी की हिम्मत नहीं कि वो आए हमारे मजहब को गाली दे, हमारे कलाम पाक को टारगेट करे, उस पे केस करे। यह हमारी गफलत है, क्योंकि नमाज रोज़े से मुसलमान नहीं होता, वो एक फ़र्ज़ है, वो एक कौल है जो आप पूरा करते हैं। सबसे पहला सतून क्या है? हुस्न अखलाक। अपना अखलाक सही करो, अपने अमाल सही करो। अल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमाता है, अगर तुम बर्बाद हो रहे हो, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर दरवाजे बंद हो गए, हर कारोबार में तुम्हें नाकामी मिल रही है, तो आओ मेरे मोमिनो, मेरे साथ कारोबार करो, सदका दो। तुम सदका डालोगे, तुम बीज डालोगे, मैं तुम्हें खेती दूंगा। क्या तुम देते हो सदका? अरे तुम तो सही से ज़कात नहीं देते, तुम तो ज़कातें डकार जाते हो। और तुम बात करते हो कि इस्लाम, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। सूद तुमने खाना शुरू कर दिया, बहनों की तुम इज्जत नहीं करते, निकाह को तुमने मुश्किल तरीन बना दिया। उठाकर देखें रोज़ाना कितने केस आते जहां मुसलमान ही मुसलमान की बेटी को जला रहा है, भून रहा है, मार रहा है, काट रहा है। क्यों भाई? वो किसी की बेटी नहीं होती, वो मुसलमान नहीं होती। मेरे पास 2000 से ज़्यादा लेटर आ चुके जहां पर मुसलमानों की ही बेटियां हैं और मुसलमानों द्वारा सताई जा रही हैं। तो कौन से मुसलमान हो? जब तुम इस तरह के मुसलमान रहोगे या बनोगे तो फिर वसीम रिजवी आएंगे, आएंगे, आए हैं और आते रहेंगे। तुम्हें खुद सुधार करने की ज़रूरत है। जब तुम अपने घर को साफ सुथरा करना शुरू करोगे इन बीमारियों से, इन गंदगियों से, तो यकीन करो कोई वसीम रिजवी नहीं आएगा, और अगर आने की कोशिश भी करता है तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। तो ये वसीम रिजवी आपने बनाया है और इस वसीम रिजवी को जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है कि यह हमारा कलामे पाक है। तेरे बाप की कोई किताब नहीं है कि तू उस पे जाके FIR करेगा या पिटीशन डालेगा या सुप्रीम कोर्ट में भोंगेगा और बीजेपी तुझे सजा के थाले में राज्यसभा का टिकट दे देगी। तेरे बाप में हिम्मत है गीता के बारे में बोल, तेरे बाप में हिम्मत है तो वेदों के बारे में बोल। क्यों नहीं बोलता वसीम रिजवी? बात कर महाभारत की, अगर तू वाकई एक बाप की औलाद है। बात करना पांडवों की जिनकी एक बीवी द्रौपदी थी। बात करना अगर तेरे में वाकई जिगरा है, तू वाकई इंसान है, कर बात। क्यों नहीं बात करता? बता कि इस्लाम का दुनिया का पहला जो हलाला हुआ था वो द्रौपदी के साथ हुआ था, जहां 5 पांडव थे उसके शौहर, और उनके औलादों को आज तक ये नहीं पता चला कि आया वो किस बाप की बेटे थे। बात करना, मैं भी देखूं तेरे में कितना जिगरा है। मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान बात होता है। तुम्हें लगता है ना इजी चुग्गा होते हैं, माले गनीमत होते हैं, हम के मुसलमानों को टैग करोगे, टारगेट करोगे, ऊपर 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 चले जाओगे। बोल, बात कर, दूसरे मजहब के बारे में बात कर, बाइबल के बारे में बात कर, यहूदियों के बारे में बात कर। अगर वाकई तू एक बाप की औलाद है वसीम रिजवी, जो कि तू नहीं है, तू खिंजीर की नाजायज औलाद है, ये हमें पता है। देखेंगे तेरे में कितना दम है। और देख रहा है मेरा खुदा जो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है वो रब्बुल आलमीन है, जो पूरे आलम को पालता है, पूरे आलम को वॉच करता है। पूरे आलम के लिए उसने ज़मीन, आसमान, पहाड़, पौधे, सब चीज़ बनाई, खाना बनाया, परिंदों का बनाया, सब का बनाया, चरिंदों का बनाया, दरिंदों का बनाया, सबको उसने रिस्क दिया। तो वसीम रिजवी तुझे वही समझेगा। लेकिन तू जो घटिया पॉलिटिक्स कर रहा है, तू जो भारत में सुन्नियों को मरवाना चाहता है, या शिया सुन्नी करवाना चाहता है, तू जो नफरतें करवाना चाहता है, तेरा ये टोटका नाकाम होगा। क्योंकि शिया भी समझदार हैं, सुन्नी भी समझदार हैं, और आप तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो शायद उन सबसे ज़्यादा समझदार हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि वसीम रिजवी जहाँ मिले, जिस सोसाइटी में आपको मिले, उसकी शक्ल देखते ही पहले उसके मुँह पर थूकिए, 2-4 धमाकेदार उसके स्लैब घुमाइए और कहिए दफा हो जा, इस महल्ले में तेरी कोई गुंजाइश नहीं। जा, तुझे रहना है तो जा RSS के हेडक्वार्टर में जा, वहीं तू नफरतें फैला। क्योंकि आतंकवादी सोच स्लीपर बम जो बनाए जाते हैं वो भगवा आतंकवादी होते हैं जो नागपुर में बनाए जाते हैं। यहां तेरी कोई गुंजाइश नहीं।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, ये मेरा पेज है अमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट के नाम से, प्लीज़ इसको फॉलो करें, लाइक करें। और मैं बस यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।